Assalamualaikum dear students, welcome back to the University of Southern Punjab on the second lecture of the video with your instructor Ali Raza Lagari. Dear students, you know that in the previous lectures we discussed regarding the tradition crime and the cyber crime. Now the brief introduction on the repeated termed keywords like cybercrime. What is the cybercrime? Cybercrime can be defined as a crime or an unlawful act where the computer is used either as a tool, a target, or the both. In other words, the cybercrime in Pakistan can be defined as an unauthorized access to some computer system without any permission of a rightful owner or a place of the criminal activity, and include everything extra. Which means that cybercrime is an act or an action which is prohibited by the law or used or committed by a tool or the digital devices like a computer or devices. Such now move to the different types of the cyber crime. Under the modern system, there are the different types of the cyber crime. Now we each and everything in this video lecture we will discuss about the different types of the cyber crime. Number one cyber crime, the type is the unassessed and the hijacking. Now what is the unassessed? Number one is the unassessed, means that without any permission, without any right, without any personal gain or permission, one person is control the other privacy something else. For example, one is that when one person hijack or control to another person privacy, that is called the unauthorized access. Unauthorized access with unauthorized which means illegal or an act or an something which is prohibited by the law. Law said that the privacy is the right of every person. Also under the constitution of Pakistan, there the fundamental rights given by the constitution, so that when any person who is unauthorized to control or an use or an act used by digital devices such as an internet or a website to control the other access to regarding with the intention to losses, which means के अगर कोई शख्स जो है वो किसी की विदाउट परमिशन के किसी की एक्सेस को, किसी की राइट को, किसी की प्राइवेसी को डिजिटल कंप्यूटर के ज़रिए, चाहे वो ईमेल हो, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो कोई भी डिवाइसेस कंप्यूटर की हो, तो इंटरनेट के ज़रिए उसको एक्सेस कर ले, अपने पास रख ले, अपने पास वो कंट्रोल कर ले, तो ऐसी चीज़ को हम कहेंगे कि जनाब ये जो है अनऑथोराइज्ड एक्सेस है, और अनऑथोराइज्ड एक्सेस जो है वो क्राइम है. अदर टर्म इज द हाईजैकिंग. हाईजैकिंग मीन्स किसी के फोर्सबली कंट्रोल करना किसी शख्स की वेबसाइट को. फॉर एग्जांपल आपने कोई वेबसाइट अपना बनाया और वो किसी शख्स ने अनऑथोराइजली इलीगली उस चीज़ को कंट्रोल कर लिया, सिस्टम सारा उसके पास आ गया, वो ऑनर है नहीं, दे नॉट टेकन द राइट, दो उसको राइट्स है नहीं उस चीज़ का, देन उसके बावजूद भी वो उसको गेन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द हाईजैकिंग. The second definition types of the hijacking means the taking the forcibly control of another person website. In this case, the owner of the website loses the control over his website and its content. यानी कि ऐसा कोई थिंग अनऑथोराइजली उसको एक्सेस कर ले विदाउट किसी लॉसेस कंट्रोल के. द थर्ड इज द पोर्नोग्राफी. ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एक क्राइम है
क्योंकि एक वेबसाइट बनाया जाता है जहां पे सेक्सुअल एक्सटीमेंट किया जाता है, जिसमें जो है बच्चे जो है मोस्टली जो इस एडल्ट्स हैं उसके बावजूद भी वो उस वेबसाइट को यूज़ करके वो वहाँ पे जो है उनकी माइंड सेटअप जो है वो इंक्लूड्स हो जाता है डिफरेंट जो है थिंग्स में। चाहे ये मैगजीन्स भी हो सकते हैं, चाहे वो फोटोग्राफिक्स के सिस्टम के ज़रिए भी हो सकते हैं, वेबसाइट्स भी क्रिएट किए जाते हैं ताकि उनका माइंड जो है उस चीज़ से उस तक चला जाए, नेगेटिविटी के पास चला जाए। तो ये भी एक साइबर क्राइम की है, दैट इज कॉल्ड द पोर्नोग्राफी, विच मीन्स दैट शोइंग द सेक्सुअल एक्ट्स इन ऑर्डर टू कॉज द सेक्सुअल एक्सटेंटमेंट। द डेफिनेशन ऑफ द पोर्नोग्राफी आल्सो इंक्लूड द pornographic website, pornographic magazines, एक्स्ट्रा। एंड थर्ड इज चाइल्ड पोर्नोग्राफी। इस पोर्नोग्राफी की वजह से मोस्टली रिसर्चर ने जब ये रिसर्च किया तो मोस्टली वर्ल्डली जो है ये बच्चे यहाँ पे मोस्टली बिलो द 18 ईयर्स वहाँ पे जो है कंप्यूटर इंटरनेट को यूज़ करते हुए जो है वो क्राइम की तरफ चले जा रहे हैं। द इंटरनेट इज बीइंग हाईली यूज्ड ए मीडियम टू सेक्सुअल अब्यूज चिल्ड्रेन। द चिल्ड्रेन और विजिबल विक्टिम टू साइबर क्राइम, उसमें वो साइबर क्राइम की इन्वॉल्वमेंट में आ जाते हैं, जैसे कि वो कंप्यूटर की नेगेटिविटी यूज़ कर लेते हैं या उसकी इंटरनेट की नेगेटिविटी यूज़ कर लेते हैं। तो इस चीज़ को भी एज अ क्राइम काउंट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द क्राइम। जो ऐसे वेबसाइट्स बनाए, ऐसे कंटेंट्स बनाए जो एक क्राइम की तरफ ले जाए, दैट इज आल्सो कॉल्ड द साइबर क्राइम। नाउ मूव टू द other types of the cyber crime, means that these are the definitions such as the cyber stalking. In the general term, stalking can be termed as the repeated acts of the harassment targeting the victim, such as following the victim, making harassing phone calls, killing the victim, paid, vandalizing victim's property, which means इसका मतलब ये है कि किसी शख्स को आप फ़ोन के ज़रिए, आप किसी ईमेल के ज़रिए आप हरासमेंट कर रहे हैं, इसलिए इसका वर्ड आ गया साइबर स्टॉकिंग, which means that किसी को आप मेल कर रहे हैं, मेल के ज़रिए आप उसको रिपीटेड कंटिन्यूली हरासमेंट करके आ रहे हैं और उसको जो है फ़ोन के ज़रिए, कॉल के ज़रिए वो जो है हरासमेंट हो रहा है, तो ऐसे शख्स जो हैं वो साइबर क्राइम की इन्वॉल्वमेंट में आ जाते हैं, चाहे वो ईमेल हो, चाहे वो फ़ोन के ज़रिए हो, चाहे वो कॉल के ज़रिए हो, दैट इज़ कॉल्ड दी साइबर स्टैलिक। और ये दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट crime of the under the crime. The fifth kinds of the denial of the service attacks. This is an attack in which the criminal floods the bandwidth of the victim's network, fills the email box with the spam mail, depriving him of the services he is entitled to access or provide. Means आपके पास एक access है, एक email का है, उसमें आपके पास एक कोई email आ जाता है कि जनाब इसमें डेटा पुट करें। जैसे ही आप वो डेटा पुट कर लेते हैं, उस वो डेटा सारा जो है आपका जीमेल का, ईमेल का, जो भी आपका ईमेल अकाउंट बना हुआ है वो सारा जो है हैकर के पास चला जाता है, साइबर क्रिमिनल के पास चला जाता है। तो दीज आर द आल्सो टाइप्स ऑफ द साइबर क्राइम। द काइंड ऑफ द अटैक इज डेजिग्नेटेड टू ब्रिंग द नेटवर्क टू क्रैश द फ्लोडिंग एंड अदर काइंड्स में आगे, जैसे कि DOS और डिस्ट्रीब्यूशन डिनायल ऑफ द सर्विस उसका हैक हो जाता है, उसका नेट नहीं चल रहा है। अब आगे वी आर फर्दर मूव टू दी नेक्स्ट टाइप्स इज द वायरस अटैक्स, यानी कि कुछ ऐसे वेबसाइट आ जाते हैं, वायरस प्रोग्राम्स आ जाता है कि यू हैव टू सेंड द समवन क्रिमिनल पर्सन शेयर योर लिंक। आपको ये कहा जाता है कि इस शेयर को जो है, इस लिंक को जो है आप इसको क्लिक करें। आप जैसे ही उसको क्लिक करते हैं तो आपकी उस वायरस जो है वो प्रोग्राम्स क्रिएट हो जाते हैं। उस वायरस प्रोग्राम्स की वजह से आपका जो कंप्यूटर का डेटा है, आपके जो डिवाइसेस का डाटा है, आपका जो पर्सनली डाटा है, वो सारा वायरस की वजह से वो उस ही हैकर के पास चला जाता है। अगर इसकी डेफिनेशन को देखें तो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी ने बड़ी मीनिंग दी है, वायरसेस आर द प्रोग्राम दैट हैव द कैपेबिलिटी टू इन्फेक्ट अदर प्रोग्राम्स एंड मेक द कॉपीज ऑफ इटसेल्फ एंड स्प्रेड इनटू अदर प्रोग्राम दैट मल्टीप्लाई लाइक अ वायरस बट स्प्रेड फ्रॉम computer to computer called as a worms, which means that
जैसे ही उसको हम क्लिक करते हैं तो उसी ही तरीके से हमारा जो डेटा है ना वो कॉपी पेस्ट हो जाता है दूसरे के एक्सेस में, जिसने ये हमें जो है वो एक लिंक शेयर किया था रिगार्डिंग दी कि ये वायरस जो है ना इसको क्लिक करें। अगर उसको क्लिक करते हैं तो वो वायरस का जो है वो सिस्टम आ जाता है। नेक्स्ट मूविंग टू अदर टाइप्स को अगर हम देखेंगे तो ये जो टाइप्स मैं डिस्कस करूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। इसको ज़रा देखिए आगे हमें काम किया, जैसे सॉफ्टवेयर प्राइवेसी। सॉफ्टवेयर प्राइवेसी जो है वो रिफर्स टू द इलीगल कॉपिंग ऑफ द जेन्युइन प्रोग्राम्स आर द कन्फर्मेटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट, जिनके किसी की प्रोडक्ट को, किसी की नेटवर्क को, किसी की वेबसाइट को कॉपी पेस्ट करना, कॉपीराइट करना। कॉपीराइट का जो एज ट्रेड है, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, वो चाहे डेवलपमेंट कंट्रीज़ हो, चाहे पाकिस्तान इज़ आल्सो इंक्लूडिंग इन द वेरियस कॉपीराइट्स हैं। जैसे कि आजकल चैट जीपीटी आ गया, चैट जीपीटी में क्लिक करके सारे मटेरियल कंटेंट्स आ जाते हैं। ये भी एक कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट है, वायलेशन है कॉपीराइट का। सो दैट these are the definitions, also different types of the crimes. अगर आएंगे the salami attacks, these are one also kinds of the cyber crime. These attacks are used for the commission of the financial crimes. The key there is to make the alteration to infringement that is a single case, it would go completely unnecessary. आजकल ईमेल के जनाब बहुत बड़े ईमेल आ रहे हैं कि जनाब आपके नाम पे जो है ये कुरानंदाजी हो गया, आपके नाम पे ये जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे आ गए। वो आपको फ़ोन कर देते हैं, अटैक्स, ये फाइनेंशियली अटैक्स इसको कहा जाता है। वो आपको कहते हैं कि जनाब 5 लाख रुपए आपकी इनामी लिखा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से, तो वो अटैक्स जो है आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट करें। देन यू हैव टू कांटेक्ट विद दिस केस, दिस नंबर। जब आप वो कांटेक्ट कर रहे हैं तो आपको वो कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन फीस यू विल शुड बी सबमिट द 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट करवाएं। आफ्टर रजिस्ट्रेशन यू हैव टू डिस्क्लोज और यू कैन रिसीव द सम अमाउंट। जब आप वो कर देते हैं अमाउंट, वो सारा डेटा जो है आपका वो है वो वहाँ से आपको क्लोज कर देते हैं, यानी कि आपको ब्लॉक कर देते हैं व्हाट्सएप से, तो जैसे ये हमसे कांटेक्ट ना कर सकें। अदर इज़ अ फिशिंग। फिशिंग इज़ द एक्ट ऑफ द सेंडिंग एन ईमेल to a user falsely claiming to be an establishment legitimate enterprises in an attempt to scam user into spreading private information that will be used for the identity theft. ईमेल के ज़रिए फिशिंग होता है, ईमेल के ज़रिए आपकी कोई भी डेटा जो है वो लॉस हो जाए, आपकी डेटा को वो कैच करना शुरू कर दें, उस पर कंट्रोल करना शुरू कर दें, चाहे वो आपके क्रेडिट कार्ड्स हो, चाहे वो आपके पासवर्ड्स हो, चाहे आपको वो वन टाइप जो है आपका कोड आता है OTP दैट इज कॉल्ड द OTP, बैंक अकाउंट नंबर्स हो, इसको जो है या वेबसाइट के जरिए आपको वो एक ईमेल कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड द फिशिंग। फिशिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ द क्राइम। नाउ मूविंग टू द अदर डेफिनेशन देखेंगे तो सेल ऑफ द इलीगल आर्टिकल्स। This is the also main types of the cyber crime कि कुछ लोग जो है some of the person who sell out of the narcotics, weapons, wildfire or an illegal act. Illegal act or illegal articles. Illegal article means an article which is prohibited by the law. यानी कि लॉ ने उस चीज़ को मना किया हुआ है कि आपने ये चीज़ सेल आउट नहीं करना है विथ बिकॉज ऑफ दीज आर द इलीगल और एन एक्ट ऑन एनीथिंग विच इज़ प्रोहिबिटेड, विच इज़ टोटली प्रोहिबिटेड बाय द लॉ। और अगर कोई ये चीज़ है तो हमारे ये साइबर क्राइम में आ जाता है। ऑनलाइन गैम्बलिंग, ये भी बहुत सारे जो है वो मेनलैंड वेबसाइट्स हैं जिस पे आपकी गेम्स भी हो जाते हैं। काफ़ी सारे ये वेबसाइट्स बने हुए हैं जिसमें आप 200 रुपये लगाते हैं, 500 डिपॉजिट करते हैं, 600 जो है वो है, उसके बाद वो आपके ईमेल को हैक किया जाए, आपके पर्सनली डेटा को हैक किया जाए, क्योंकि वहाँ पे यू हैव टू आल्सो पुट द अकाउंट नंबर डिटेल्स, योर जैज कैश, योर इजी पैसा और एनी अकाउंट डिटेल यू हैव टू शेयर द सम मनी। वो आपको कह रहे हैं कि जनाब ये अकाउंट नंबर आप डिटेल में सेंड कर दें, आपको जो है ना इतने पैसे जो है वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे। दीज आर द मेन समथिंग डेफिनेशन of the different types of the cyber crime. Now overview of the cyber crime. The cyber crime means that an act or an to do something which is prohibited by the law.
which is prohibited by the law, that is called the cybercrime. There are the different types of the cybercrimes, such as we are discussing phishing. Phishing is the so very important डेफिनेशन थ्रू द ईमेल के ज़रिए वो आपके टाइप्स को जो है वो हैक कर रहे हैं, आपकी जो है डिफामेशन कर रहे हैं, हरासमेंट का आपको ईमेल के ज़रिए किया जाता है, आपकी वेबसाइट्स, आपकी जो है डिफरेंट्स जो है आपकी एसेस को अनऑथराइजली कंट्रोल किया जाता है. वी आर नाउ इंशाल्लाह ताला वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू सो मच. We will meet in the next class. Thank you so much.